بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد نے اپنے آپ سے کہا، یہ جادو نہیں، اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو جادو کا یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ صحیح تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایسی عسکری تعلیم و تربیت دی تھی کہ وہ میدان جنگ کا جادوگر کہلا سکتا تھا، مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا ابو سفیان، وہ قبیلے کا سالار اعلیٰ بھی تھا۔ اس کے ماتحت خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ اپنی اس مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسے چند دن پہلے کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ 1400 مسلمان اس کی گات کو دھوکہ دے کر مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا اور اسے یہ خفت بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کی گات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے تانے دے گا اور ہنسی اڑائے گا، پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک رستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ یہ دور کا رستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے 300 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیاں لگا دیں۔ رستہ لمبا ہونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ 1.5 گنا ہو گیا تھا، جسے خالد رفتار سے کم کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مسلمانوں کی ابھی ہوا بھی نہیں پہنچی تھی۔ مکہ کے لوگ گھوڑوں کے شور و غل پر گھروں سے نکل آئے اور ابو سفیان بھی باہر آ گیا۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہاری گات کامیاب رہی؟ خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا، وہ گات میں آئے ہی نہیں۔ کیا تم مکہ کے ارد گرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد کھدوائی تھی؟ ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو؟ خالد نے کہا، جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو، اتنی دیر میں وہ مکہ کو محاصرے میں لے لیں گے۔ ہیبل اور عزا کی عظمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو رونتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ قرالغیم میں سے کسی اور رستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں۔ کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر آئے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خالد ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ خالد نے جل کر کہا، ابو سفیان، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے 2 ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب ہی کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے، اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو، اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بگدڑ برپا ہو گئی تھی۔ لڑنے والے لوگ برچیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتوں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو قلعوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ 2 نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنی ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا بھی مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا۔ اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سر توڑ کوشش
कोशिश कर रहा था। उसने अबू सुफियान को नजरअंदाज कर दिया। अकरमा और सफवान को साथ लिया और ऐसी चालें सोच लीं जिनसे वो मुसलमानों को शहर से दूर रख सकता था। उसने सवारों की कुछ तादाद इस काम के लिए मुंतखब कर ली कि वो सवार शहर से दूर चले जाएं और मुसलमान अगर मुहासरा कर लें तो ये घुड़सवार अकब से मुहासरे पर हमला कर दें, मगर वहां जम कर ना लड़ें बल्कि मुहासरे में कहीं शिगाफ डाल कर भाग जाएं। शहर में अफरा तफरी और लड़ने वालों की भाग दौड़ और ललकार में चंद एक औरतों की मुतरन्नम आवाजें सुनाई देने लगीं। उनकी आवाजें एक आवाज बन गई थीं। वो रज़मिया गीत गा रही थीं जिसमें रसूलुल्लाह के कत्ल का जिक्र था। बड़ा जोशीला और भड़का देने वाला गीत था। वो औरतें गलियों में ये गीत गाती फिर रही थीं। चंद एक मुसल्ला शुतर सवारों को मदीना की तरफ से आने वाले रास्ते पर और 2-3 को और सिमतों की तरफ दौड़ा दिया गया कि वो मुसलमानों की पेशकदमी की खबरें पीछे पहुंचाते रहें। औरतें ऊंचे मकानों की छतों पर चढ़कर मदीना की तरफ देख रही थीं। सूरज उफक में उतरता जा रहा था। सहरा की शफक बड़ी दिलफरेब हुआ करती है, मगर उस शाम मक्का वालों को शफक में लहू के रंग दिखाई दे रहे थे। कहीं से या किसी भी तरफ से गर्द उठती नजर आ रही थी। खालिद ने अकरमा और सफवान से कहा, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। हम इतनी जल्दी खंदक नहीं खोद सकते। अकरमा ने कहा, हम खंदक का सहारा लेकर नहीं लड़ेंगे। सफवान ने कहा, हम उनके मुहासरे पर हमले करेंगे, उनके पांव जमने नहीं देंगे। सूरज गरूब हो गया और रात गहरी होने लगी, पर कुछ भी ना हुआ। मक्का में जिंदगी बेदार और सरगर्म रही, जैसे वहां रात आई ही ना हो। औरतों, बच्चों और बूढ़ों को किलों जैसे मकानों में मुंतकिल कर दिया गया था, और जो लड़ने के काबिल थे वो अपने सालारों की हिदायत पर शहर के इर्द गिर्द अपने मोर्चे मजबूत कर रहे थे। रात आधी गुजर गई पर मदीना वालों की आमद के कोई आसार ना आए और फिर रात गुजर गई। अबू सुफियान ने पूछा, खालिद कहाँ है वो? अगर तुम ये समझते हो कि वो नहीं आएंगे तो ये बहुत खतरनाक फरेब है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अकल तक तुम नहीं पहुंच सकते। जो वो सोच सकता है वो तुम नहीं सोच सकते। वो आएंगे। उस वक्त तक मुसलमान चंद एक मारे के दूसरे कबीलों के खिलाफ लड़कर अपनी दाग बिठा रहे थे। उनमें ग़ज़वे खैबर एक बड़ा मारिका था। उन्हें जंग का तजर्बा हो चुका था। खालिद ने कहा, अबू सुफियान, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि मुसलमान अब वो नहीं रहे जो तुमने ओहद में देखे थे। अब वो लड़ने के माहिर बन चुके हैं। उनका अभी तक सामने ना आना भी एक चाल है। अबू सुफियान कुछ कहने ही लगा था कि एक शुतर सवार नजर आया जिसका ऊंट बहुत तेज रफ्तारी से दौड़ता आ रहा था। अबू सुफियान और खालिद के करीब आकर उसने ऊंट रोका और कूद कर नीचे आया। शुतर सवार ने कहा, मेरी आंखों ने जो देखा है वो तुम नहीं मानोगे। मैंने मुसलमानों को हुदैबिया में खेमज़न देखा है। अबू सुफियान ने कहा, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह और उसका लश्कर नहीं हो सकता। शुतर सवार ने कहा, खुदा की कसम, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह को इस तरह पहचानता हूँ जिस तरह तुम दोनों मुझे पहचानते हो, और मैंने ऐसे और आदमियों को भी पहचाना है जो हम में से थे लेकिन उनके साथ जा मिले थे। हुदैबिया मक्का से 13 मील दूर मगरिब में एक मकाम था। रसूल करीम खूनरेजी से बचना चाहते थे, इसलिए आप मक्का से दूर हुदैबिया में जा खेमज़न हुए थे। खालिद ने कहा, हम उन पर शबखून मारेंगे, उन्हें सस्ताने नहीं देंगे। वो जिस रास्ते से हुदैबिया पहुंचे हैं उस रास्ते ने उन्हें थका दिया होगा। उनकी हड्डियां टूट रही होंगी। वो ताज़ा
दम होकर मक्का पर हमला करेंगे, हम उन्हें आराम नहीं करने देंगे। अबू सुफियान ने कहा, हम उन्हें वहां से भगा सकते हैं, छापामार जैश तैयार करो। रसूल अकरम ने अपनी खैमागाह की हिफाजत का इंतजाम कर रखा था। घुड़सवार जैश रात को खैमागाह के इर्द गिर्द गश्ती पहरा देते थे, दिन को भी पहरे का इंतजाम था। एक और घुड़सवार जैश ने अपने जैसा एक घुड़सवार जैश देखा जो खैमागाह से दूर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसलमान सवार उन सवारों की तरफ चले गए। वो कुरैश के सवार थे जो वहां ना रुके और दूर चले गए। कुछ देर बाद वो एक और तरफ से आते नजर आए और मुसलमानों की खैमागाह से थोड़ी दूर रुक कर चले गए। दूसरे रोज वो सवार खैमागाह के करीब आ गए। अब के मुसलमान सवारों का एक जैश जो खैमागाह से दूर निकल गया था वापस आ गया। उस जैश ने उन सवारों को घेर लिया। उन्होंने घेरे से निकलने के लिए हथियार निकाल लिए। उनमें झड़प हो गई, लेकिन मुसलमान सवारों के कमांडर ने अपने सवारों को रोक लिया। जैश के कमांडर ने कहा, इन्हें निकल जाने दो। हम लड़ने आए होते तो इनमें से एक को भी जिंदा ना जाने देते। वो मक्का के लड़ाका सवार थे। उन्होंने वापस जाकर अबू सुफियान को बताया। अबू सुफियान ने कहा, चंद और सवारों को भेजो और एक शबखून मारो। एक सवार ने कहा, मेरे कबीले के सरदार, हमने शबखून मारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उनकी खैमागाह के इर्द गिर्द दिन रात घुड़सवार घूमते फिरते रहते हैं। कुरैश के चंद और सवारों को भेजा गया। उन्होंने शाम के जरा बाद शबखून मारने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान सवारों ने उनके कुछ सवारों को जख्मी करके वहां से भगा दिया। मक्का वालों पर तजब्जब की कैफियत तारी थी। वो रातों को सोते भी नहीं थे। महासरे के डर से वो हर वक्त बेदार और चौकस रहते थे और दिन गुजरते जा रहे थे। आखिर एक रोज मक्का में एक मुसलमान सवार दाखिल हुआ। ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। उन्होंने अबू सुफियान के मुतालिक पूछा। अबू सुफियान ने दूर से देखा और दौड़ा आया। खालिद भी आ गया। हजरत उस्मान ने कहा, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। हम लड़ने नहीं आए, हम उम्रा करने आए हैं। उम्रा करके चले जाएंगे। अबू सुफियान ने कहा, अगर हम इजाजत ना दें तो? हजरत उस्मान ने जवाब दिया, हम मक्का वालों का नहीं, खुदा का हुक्म मानने वाले हैं। हम अपने और अपनी इबादतगाह के दरमियान किसी को हायल नहीं होने दिया करते। अगर मक्का के मकान हमारे लिए रुकावट बनेंगे तो खुदा की कसम मक्का मलबे और खंडरों की बस्ती बन जाएगी। अगर यहाँ के लोग हमें रोकेंगे तो मक्का की गलियों में खून बहेगा। अबू सुफियान, हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं और यहाँ के लोगों से अमन का तोहफा लेकर जाएंगे। खालिद को वो लम्हे याद थे जब ये मुसलमान सवार पुरवकार लहजे में धमकी दे रहा था। खालिद का खून खोल उठना चाहिए था, लेकिन उसे ये आदमी बड़ा अच्छा लगा था। अबू सुफियान ने उस्मान को उम्रे की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने अपने नबी पाक के बगैर अकेले उम्रा करने से साफ इनकार कर दिया था। इधर मुज़ाकरात में जब ज्यादा वक्त गुजरा तो हवा के दोष पर ये अफवाह हुदैबिया पहुंची कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कत्ल कर दिया गया है, जिसके जवाब में रसूल करीम ने कत्ले उस्मान के इंतकाम के लिए अपने 1400 जानिसारों से बैत ली थी। इसी बैत को तारीख में बैत रिजवान के नाम से याद किया जाता है और इसी बैत की वजह से अबू सुफियान समझौते पर राजी हुआ था। फिर एक सुलहनामा तहरीर हुआ था जिसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया। मुसलमानों की तरफ से
से उस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने और कुरैश की तरफ से सुहेल बिन उमरों ने दस्तखत किए थे। इस सुलहनामे में तय पाया था कि मुसलमान और अहले कुरैश 10 साल तक नहीं लड़ेंगे और मुसलमान आइंदा साल उम्रा करने आएंगे और मक्का में 3 दिन ठहर सकेंगे। रसूल करीम कुरैश में से थे। खालिद आपको बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब उसने आपको देखा तो उसने महसूस किया कि ये कोई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ऐसा मुतासिर हुआ कि उसके जहन से उतर गया कि ये वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिसे वो अपने हाथों कत्ल करने के मंसूबे बनाता रहता था। खालिद नबी करीम को एक सालार की हैसियत से ज्यादा देख रहा था। वो आपकी अस्करी अहलियत का कायल हो गया था। सुलह हुदैबिया तक मुसलमान रसूल करीम की क़यादत में छोटे बड़े 28 मारके लड़ चुके और फतह व नुसरत की दाग बिठा चुके थे। मुसलमान उम्रा करके चले गए। 2 महीने गुजर गए थे। इन 2 महीनों में खालिद पर खामोशी तारी रही, लेकिन उस खामोशी में एक तूफान और एक इनकलाब परवरिश पा रहा था। खालिद ने मजहब में कभी भी दिलचस्पी नहीं ली थी। उसे ना कभी अपने बुतों का ख्याल आया था, ना कभी उसने रसूल करीम की रिसालत को समझने की कोशिश की थी। मगर अब अस खुद उसका ध्यान मजहब की तरफ चला गया और वो उस सोच में खो गया कि मजहब कौन सा सच्चा है और इंसान की जिंदगी में मजहब की अहमियत और जरूरत क्या है। एक रोज खालिद ने अपने साथी सालार अकरमा से, जो उसका भतीजा भी था, कहा, अकरमा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं समझ गया हूँ। अकरमा ने कहा, क्या समझ गए हो खालिद? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जादूगर नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शायर भी नहीं। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुश्मन समझना छोड़ दिया है और मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुदा का रसूल तस्लीम कर लिया है। अकरमा ने कहा, हैबल और उज़ा की कसम, तुम मजाक कर रहे हो। कोई नहीं मानेगा कि वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ रहा है। खालिद ने कहा, वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ चुका है। अकरमा ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे कितने आदमियों को कत्ल करा चुका है? तुम उनके मजहब को कबूल कर रहे हो जिनके खून के हम प्यासे हैं। खालिद ने 2 टोक लहजे में कहा, मैंने फैसला कर लिया है अकरमा, मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। उसी शाम अबू सुफियान ने खालिद को अपने यहाँ बुलाया, जहाँ अकरमा भी मौजूद था। अबू सुफियान ने उससे पूछा, क्या तुम भी मुहम्मद रसूलुल्लाह की बातों में आ गए हो? खालिद ने कहा, तुमने ठीक सुना है अबू सुफियान, मुहम्मद रसूलुल्लाह की बातें ही कुछ ऐसी हैं। मशहूर मुअर्रिख वाकिदी ने लिखा है कि अबू सुफियान कबीले का सरदार था। उसने खालिद का फैसला बदलने के लिए उसे कत्ल की धमकी दी। खालिद उस धमकी पर मुस्कुरा दिया, मगर अकरमा बर्दाश्त ना कर सका, हालांकि वो खुद खालिद के इस फैसले के खिलाफ था। अकरमा ने कहा, अबू सुफियान, मैं तुम्हें अपने कबीले का सरदार मानता हूँ, लेकिन खालिद को जो तुमने धमकी दी है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खालिद को अपना मजहब बदलने से नहीं रोक सकते। अगर तुम खालिद के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो हो सकता है कि मैं भी खालिद के साथ मदीना चला जाऊं। अगले ही रोज मक्का में हर किसी की जबान पर ये अल्फाज थे, खालिद बिन वलीद मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास चला गया है। खालिद यादों के रेले में बहता मदीना को चला जा रहा था। उसे अपना माजी इस तरह याद आया था जैसे वो घोड़े पर सवार मदीना को नहीं बल्कि प्यादा अपने माजी में चला जा रहा था। उसे मदीना के ऊंचे मकानों की मुंडीरें नजर आने लगी थीं। खालिद, उसे किसी ने पुकारा, लेकिन उसे गुजरे हुए वक्त की आवाज समझकर उसने नजरअंदाज कर दिया।
उसे घोड़ों के टाप सुनाई दिए तो तब उसने देखा। उसे 2 घोड़े अपनी तरफ आते दिखाई दिए तो वो रुक गया। घोड़े उसके करीब आकर रुक गए। एक सवार उसके कबीले का मशहूर जंगजू उमरो बिनुल आस था और दूसरा उस्मान बिन तलहा। दोनों ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। खालिद ने उनसे पूछा, क्या तुम दोनों मुझे वापस मक्का ले जाने के लिए आए हो? उमरो बिनुल आस ने पूछा, तुम जा कहाँ रहे हो? खालिद ने पूछा, और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उस्मान बिन तलहा ने कहा, खुदा की कसम, हम तुम्हें बताएंगे तो तुम खुश नहीं होगे। हम मदीना जा रहे हैं। उमरो बिनुल आस ने कहा, बात पूरी करो उस्मान। खालिद, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल करने जा रहे हैं। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुदा का सच्चा नबी मान लिया है। खालिद ने कहा, फिर हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, आओ इकट्ठे चलें। वो 31 मई सन 628 का दिन था जब तारीख़ इस्लाम के 2 अजीम जर्नेल खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन वलीद और उमरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनुल आस मदीना में दाखिल हुए। उनके साथ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन तलहा भी थे। तीनों रसूल करीम के हुजूर पहुँचे। सबसे पहले खालिद बिन वलीद अंदर गए। उनके पीछे उमरो बिनुल आस और उस्मान बिन तलहा गए। तीनों ने कबूल इस्लाम की ख्वाहिश जाहिर की। रसूलुल्लाह उठ खड़े हुए और तीनों को बारी बारी गले लगाया।